Sometimes people come and ask us, brother, what is the sign or how do I know that I'm spiritually growing? और कई बार लोग हमारे पास आकर पूछते हैं कि भाई, क्या वो चिन्ह है जिससे मैं ये जान सकता हूँ कि मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ। They try doing this, that, and the other things, and then they find themselves defeated so many times in so many areas. और And वो sometimes they wonder whether I'm really making progress or not. और वो अलग अलग चीजें करने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद वे आत्मिक तौर पर हारे हुए जीवन जीते हैं। और फिर वो ये सोचने लगते हैं कि इतनी हार देखने के बाद कि क्या मैं वाकई आत्मिक उन्नति कर भी रहा हूं या नहीं। On the day of Pentecost in chapter 2 of Acts, we read when Peter preached to them, in one day there were about 3,000 hardcore Jews who got converted. और पिंटेकोस्त के दिन प्रेरितों के काम इसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, जब पतरस ने प्रचार किया तो एक ही दिन में 3,000 कट्टर यहूदी लोग इनका नया जन्म हुआ। And when they heard the gospel, they asked Peter, uh, Sirs, what should we do? और जब उन्होंने सुसमाचार सुना तो उन्होंने पतरस से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। And the first thing Peter told them is repent और पहली चीज जो पतरस ने उनसे कही वो ये थी कि मन फिराओ, and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, for the forgiveness of your sins, अपने पापों की क्षमा के लिए, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। And this promise is for you and for your children, and for all who are far off, as many as the Lord our God shall call to himself. 39 वचन, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। And I'm reading from Acts chapter 2, verse 41. मैं प्रेरितों 2:41 को पढ़ रहा हूँ। So then, those who had received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। It's good for us to know how these 3,000 people, new converts, started growing spiritually in the Lord. और हमारे लिए ये जानना बहुत अच्छा है कि ये जो 3,000 नए मसीह में जन्मे लोग थे, कैसे आत्मिक तौर पर उन्नति करते थे। And that we read in the next verse. और इसके बारे में हम अगले वचन में पढ़ते हैं। There they continued to do four things. और वहां वे चार चीजें निरंतर करते गए। It says in verse 42, and these 3,000 people were continually devoting themselves to number one, to the apostles' teaching, 42 वचन में लिखा है कि ये 3,000 लोग थे, वो निरंतर चार चीजें गए। सबसे पहले प्रेरितों से शिक्षा पाना, and number two, to fellowship, दूसरा था संगति रखना, number three, to the breaking of bread, तीसरा था रोटी तोड़ना, and the last one is to prayer. और चौथा था प्रार्थना करना। They continued to doing that, these four things, the apostles' teaching and fellowship, breaking of bread, and prayer. वे As they continued to do that, the church started growing and people were being added. और वे चार चीजें निरंतर करने लगे, प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने में लौलीन रहना। और जैसे जैसे वो ये चार चीजें करते गए तो कलीसिया उन्नति करते गई और वहां और लोग जुड़ते गए। It says here that they were devoting themselves to the apostles' teaching. यहाँ लिखा है कि वे अपने आप को प्रेरितों के शिक्षा में लौलीन करते गए या समर्पित करते गए। Because in those days they didn't have the full Bible like we have today. क्योंकि उन दिनों में उनके पास पूरा बाइबल नहीं था जैसे हम लोगों के पास आज है। And the Bible was not completed. Only the Old Testament was not there, the New Testament was not written.
Even the Gospels were not written completely. और उस समय बाइबल के सब पुस्तक बने नहीं थे, नया नियम लिखा नहीं गया था, पुराना नियम पूरा हो चुका था और सुसमाचार भी यहाँ तक कि लिखे नहीं गए थे। So they had to listen when the apostles were teaching the Word of God और जब very intently. प्रेरित परमेश्वर के वचन को सिखाते तो उन्हें बड़े ध्यान से सुनना पड़ता था। And during Jesus' lifetime, also, we read, among many other things, other than doing miracles and wonders and healings, Jesus' main mission in life was to preach and to teach. और यीशु के जीवन में भी हम देखते हैं, इसके बावजूद कि उसने कई चमत्कार किए, कई चिन्ह किए, उसका मुख्य मकसद और उद्देश्य था सिखाना और प्रचार करना। We read about that in Luke's Gospel, chapter 19, हम लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं, verse 47. उसका 47 वचन। It's written here that Jesus was teaching daily in the temple. यहाँ लिखा है कि यीशु प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था। Every day, in another place, it says morning and evening, he प्रतिदिन used to वो teach them. वहां सिखाता था। एक और अनुवाद कहता है कि सुबह और शाम वो वहां सिखाता था। And people used to flock to come to listen to Jesus every day early in the morning. और लोग बड़ी भीड़ करके वहां यीशु को प्रचार करते हुए सुनने के लिए आते थे, बड़े भोर को वे आते थे। And the same thing we read in Acts 5:42 also. यही बात हम प्रेरितों 5 उसके 42 में भी पढ़ते हैं। And every day in the temple and from house to house, they kept right on teaching and preaching Jesus as the Christ. वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। It was not man's some bright thoughts that they were sharing with people, but it was the inspired word of God. अब ये मनुष्य के कोई बहुत ही ज्योतिमय ऐसे विचार नहीं थे जो वो प्रचार कर रहे थे, पर परमेश्वर के वचन का प्रचार वे लोगों से साझा कर रहे थे। Because the word of God is not some bright idea of man from different ages. और परमेश्वर का वचन ये नहीं है कि मनुष्यों को कोई बहुत ही अद्भुत तरकीब सूझी और फिर उन्होंने वो लिखी अलग अलग समय, ऐसा नहीं है। It says in 2 Timothy 3:16, I will read that in from the message translation. और दूसरा तिमुथियुस 3:16 को मैं मैसेज भावानुवाद से पढ़ना चाहूंगा। It says here, every part of scripture is God breathed और यहाँ लिखा है कि बाइबल का हर एक भाग जो है वो परमेश्वर के सांस से मानो दिया गया है and useful one way or another, और किसी ना किसी तरीके से वो उपयोगी है, showing us the truth, हमें सत्य दिखाता है, exposing our rebellion, हमारे बलवा को दिखाता है, प्रकट करता है, correcting our mistakes, हमारे गलतियों को सुधारता है, training us to live God's way. परमेश्वर के मार्ग में जीने में हमें प्रशिक्षित करता है। So the word of God is not man-made idea. और परमेश्वर का वचन ये मनुष्यों की कोई तरकीब नहीं है। Every word of God is inspired by God. परमेश्वर का हर एक वचन ये परमेश्वर प्रेरित है। Inspired means God breathed into it. परमेश्वर की प्रेरणा से मतलब परमेश्वर ने खुद अपने श्वास को उसमें फूंका है। And Jesus said in John 6 that the words that I speak to you, they are life and their spirit. और यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 अध्याय में कहा, जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वे आत्मा और वे जीवन है। And in Psalm 107 verse 20, it is written that God sent his word and healed them. और भजन संहिता 117 उसके 19 या 20 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर, 20 वचन में अपने वचन के द्वारा वचन को भेजकर उन्हें चंगा किया। Even in Proverbs chapter 4, it says, keep the word of God in the midst of your heart, for it is health to all your flesh and bone, it says.
और नीति वचन के पुस्तक उसके चौथे अध्याय में भी लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है अपने हृदय के बीचों बीच रख, और वो तेरे संपूर्ण शरीर के लिए एक स्वास्थ्य के समान या जीवन के समान होगा। And we read in Matthew's Gospel, chapter 7, और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में भी पढ़ते हैं, some very scary words that Jesus says, बहुत डरावने से वचन है जो यीशु ने कहे, that many people on that day will come and tell me, Lord, Lord, we have um, prophesied in your name, we cast out demons in your name, performed many miracles in your name, and so on and so forth. और उस दिन कई लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, और ऐसी कई चीजें वे बताएंगे। But you know what Jesus tells these people? पर क्या आप जानते हो यीशु इन लोगों से क्या कहता है? He says to them, this is, I say, is very scary word in Scripture. He says to them, depart from me, I never knew you, you workers of iniquity. और यीशु इनसे कहता है, और मैं समझता हूं कि ये बाइबल के बहुत ज्यादा डर उत्पन्न करने वाले वचन है। यीशु उनसे कहता है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। So, but what kind of people the Lord is looking for? अब किस प्रकार के लोगों की खोज परमेश्वर कर रहा है? Verse 24 it says, 24 वचन, therefore, everyone who hears these words of mine and obeys them, इसलिए I जो कोई compare मेरी them, I compare them to a wise man. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं उसकी तुलना एक बुद्धिमान मनुष्य के समान करूंगा। So it is not just the hearers of the word that are accepted by God, और इसलिए परमेश्वर के वचन के केवल सुनने वाले नहीं है जो परमेश्वर जिन्हें स्वीकार करता है, but those who hear and do them or obey them. बल्कि ऐसे लोग जो उन्हें सुनते हैं और उनकी आज्ञा भी मानते हैं। Those are welcome to the Lord. ये वो है जो परमेश्वर जिनका स्वागत करता है। And the second thing that these people did was they fellowshipped with one another. दूसरी चीज जो ये लोग करते थे वो ये थी कि वे एक दूसरे के साथ संगति करते थे। What is fellowship? संगति क्या है? Some people say fellowship is like two fellows in a ship. और कई लोग कहते हैं संगति का मतलब है दो लोग एक नाव में। But that is not the real meaning of fellowship. पर संगति का असली मतलब ये नहीं है। Two fellows can be in the ship, but they may not be on talking terms. दो लोग जहाज में तो हो सकते हैं, पर शायद वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। And though two people can be on the bed, like say husband and wife, in between them there can be an Atlantic Ocean. और दो लोग एक ही बिस्तर पर जैसे पति पत्नी होकर भी हो सकता है कि उनके बीच में एक बहुत बड़ा महासागर हो। So fellowship is not just being around people. और संगति का मतलब केवल ये नहीं कि लोगों के इर्द गिर्द या लोगों के आसपास होना, That is friendship. वो तो केवल दोस्ती है। Fellowship, according to the Bible, we read in 1 John chapter 1 verse 3. और संगति क्या है, हम इसे बाइबल के अनुसार पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 3 वचन में पढ़ते हैं। He says here that we have seen and heard, what we have seen and heard we proclaim to you, that you also may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। And what is fellowship here according to John? अब यूहन्ना के अनुसार यहाँ संगति का क्या मतलब है? He says, if we say, verse 6, that we have fellowship with Him and yet walk in darkness, means we have sin in our life, in our thought life, or in our personal life. Yet we walk in darkness, we lie and do not practice the truths.
छठा वचन कहता है, यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, इसका मतलब अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई चीज है जो अंधकार से भरा है, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। And verse 7 it says, "But if we walk in the light, as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin." सातवां वचन, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। So, this is true fellowship. First of all, our fellowship should be with the Father and with the Lord Jesus Christ, and ये then with his children who have been blood bought and cleansed by the blood. ये है सच्ची संगति, कि पहले हमारी संगति पिता परमेश्वर और यीशु मसीह उसके पुत्र के साथ हो, और उसके बाद उसके उनके जो संतान है, जो उसके लहू से खरीदे हुए हैं, उसके लहू से शुद्ध किए गए हैं, उनके साथ हमारी संगति हो। If I don't have fellowship with my Heavenly Father and Jesus Christ, but want to have fellowship with one another here, it amounts to friendship and not fellowship. Fellowship is deeper than friendship. अगर मैं अपने स्वर्गीय पिता के साथ संगति न रखते हुए यहाँ के लोगों के साथ संगति ही रखना चाहता हूं, तो फिर And ये संगति नहीं, ये केवल मित्रता है, और संगति मित्रता से गहरी होती है। and fellowship is only between those who walk in the light and those who are cleansed by the blood of Christ, और संगति केवल उन्हीं लोगों के बीच में है कि जो ज्योति में चलते हैं और जो मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, who judge themselves every day जो प्रतिदिन अपने आप का न्याय करते हैं, and cleanse themselves प्रतिदिन अपने आप को शुद्ध करते हैं, and ask the Lord to help them in their daily life so that they walk worthy of His calling. और वे प्रभु से मांगते हैं कि अपने प्रतिदिन के जीवन में उन्हें शुद्ध करे, ताकि उनके बुलाहट के योग्य वे जीवन जी पाए। So if I say I'm walking in the light and there is darkness, means hidden sin in my life, then I'm not living the truth. I'm lying. और इसलिए अगर मैं कहता हूं कि हमारी संगत सहभागिता है और फिर मैं अंधकार में चलूं, मतलब छिपा हुआ पाप है, तो फिर मैं सत्य में नहीं चल रहा, मैं झूठ कह रहा हूं। Because it says that God is light and in Him there is no darkness at all. क्योंकि वहां लिखा है 5वें वचन में कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। So if I say I belong to the Lord, और अगर मैं कहूं कि मैं प्रभु का हूं, Jesus said, I am the light of the world. यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। And if I say I am a follower of Jesus Christ, और अगर मैं कहता हूं कि मैं यीशु मसीह का एक अनुयायी हूं, उसका शिष्य हूं, I'll also endeavor or try my best to walk in the light as He is in the light. मैं भी अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करूंगा कि मैं भी वैसे ज्योति में चलूं जैसे वो ज्योति में है। Then we have fellowship with God and with one another. तब हमारी परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ संगति होगी। That's the real fellowship. ये है सच्ची संगति। That is scriptural fellowship, we can say. ये आप कह सकते हो कि ये बाइबल के अनुसार की संगति है। And the third thing that they did was that they broke bread together. तीसरी चीज जो उन्होंने की, उन्होंने एक साथ रोटी तोड़ी। We read about that in the Gospels. On the last day, on the eve of crucifixion, Jesus called only the 12 disciples for breaking bread. हम इसके बारे में सुसमाचार में पढ़ते हैं कि अंतिम दिन पर जब वो उस पृथ्वी पर था, उसने अपने 12 शिष्यों को रोटी तोड़ने के लिए बुलाया। We read in the Gospels that Jesus has had multitudes of people following him, and multitudes of disciples were there, and another 70 people were there, and then a smaller circle of 12. So many people were there as Jesus' disciples. और हम सुसमाचार में देखते हैं कि यीशु के पीछे उसे देखने, उसे सुनने के लिए लंबी लंबी बड़ी बड़ी भीड़ होती थी, पर उसके बावजूद उसके 70 विशेष चेले थे, और उन 70 में से भी उसके 12 विशेष शिष्य थे। And we read in John 6 when Jesus started speaking about, taking up the cross and eating his flesh and drinking his blood and certain things like that.
Many of them got offended and left. और हम देखते हैं यूहन्ना उसके छठे अध्याय में जब यीशु ने कहा मेरे लहू को पीना, मेरे शरीर को खाना, मेरे मांस को खाना, ऐसे चीजों से कई लोग बुरा मान गए, ठोकर खाकर उसे छोड़कर चले जाते हैं। And finally, the 12 were left, and Jesus asked them, would you also like to go? आखिरकार केवल 12 बचे थे और यीशु उनसे भी पूछता है, क्या तुम भी जाना चाहते हो? And they said, Lord, where shall we go? You have the words of eternal life. और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम कहाँ जाए? अनंत जीवन के वचन तो तेरे पास है। And remember, on the eve of crucifixion, Jesus didn't give an open invitation to all those who believed in him. ये भी याद रखिए कि क्रूस पर जाने से पहले यीशु मसीह ने एक खुला न्योता हर एक व्यक्ति को नहीं दिया रोटी तोड़ने के लिए कि जो भी उसे जानता था वो आए। It was a very private meeting, वो and invitees were very few. और बहुत ही निजी सी एक सभा थी और बहुत ही कम लोग वहां आमंत्रित थे। Jesus didn't even invite his own mother for that breaking of bread. और उस रोटी तोड़ने के लिए यीशु मसीह यहाँ तक कि उसने अपने खुद के माँ को भी आमंत्रित नहीं किया। He called only the 12 disciples and no उसने one else. उसने केवल 12 शिष्यों को बुलाया और किसी और व्यक्ति को नहीं बुलाया। People sometimes ask us why you are so exclusive about it. और कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि रोटी तोड़ने के बारे में आप इतना कम लोगों को क्यों उसमें आने की अनुमति देते हो? Because Jesus said, you are the ones who stood by me in my trials. क्योंकि यीशु कहता है, तुम वे लोग हो जो मेरे साथ मेरे परीक्षाओं में खड़े हुए हो। They were not perfect. वे सिद्ध नहीं थे। He knew that next day morning they will all run away from him. वो जानता था कि अगले दिन सुबह वे सब उससे भागकर वहां से चले जाएंगे। But still, he said, I have longed to eat this Passover with you. पर फिर भी यीशु कहता है कि ये फसह का जो पर्व है, इसको तुम्हारे साथ मनाना और तुम्हारे साथ खाने की मेरी आतुर लालसा थी। So, on that day, when he broke bread, you can read that in the gospel. I don't have time to show you all. When he broke bread, he said, take, eat. This is my body broken for you. Not that tomorrow morning it will be broken on the cross. It's already broken for you. और उस दिन आप सुसमाचारों में इसे पढ़ सकते हो, अब मेरे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए। यीशु मसीह ने रोटी ली, उसे तोड़कर अपने चेलों से कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। यीशु ये नहीं कह रहा कि कल मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, वो कह रहा है कि देखो, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए पहले से ही तोड़ा गया है। That means during the 33 and a half years that he walked on earth, Jesus, his self life was broken all the time. और इसका मतलब उन 33 वर्षों के लिए जब यीशु इस पृथ्वी पर था, उसकी स्वयं की इच्छा जो थी वो हर समय अपने वो टूट रही थी। Isaiah 53, we read about Jesus that he poured out his soul unto death. और यशायाह उसके 53 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने प्राण को मृत्यु तक उंडेल दिया। So, till the last day of his life, Jesus had to bear his cross, not physically, he had a cross inwardly where his self was being crucified और always. और उसके जीवन के अंत तक उसके पास एक क्रूस था, केवल एक शारीरिक क्रूस नहीं, पर एक ऐसा क्रूस जहां उसकी स्वयं की इच्छा हमेशा मारी जाती थी। That's why he says, this bread is my body broken for you. और इसलिए वो कहता है, ये रोटी जो है मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। Similarly, he says, after they ate the bread, he blessed the cup and he said, take and drink from it, each one of you. This is the blood of the new covenant, which is poured out for you. Not it's going to be poured out on the cross tomorrow. और फिर एक बार वो कहता है, रोटी होने के बाद वो उसने वो प्याला भी लिया, वो कटोरा लेकर वो कहता है, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा का है। और वो ये नहीं कह रहा कि मेरा लहू जो कल बहाया जाएगा, वो कहता है मेरा ये लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। So we read
again in chapter 2 of 46 और हम in the book of Acts. और फिर एक बार हम पढ़ते हैं प्रेरितों 2 उसके 46 में, Day by day, continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। There's a word, very important word there, says they were breaking bread with gladness and sincerity of heart. There was no hypocrisy there. और वहां एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है कि वे रोटी तोड़ते थे आनंद के साथ और मन की सिधाई के साथ, मतलब वहां कोई पाखंड, वहां कोई कपट नहीं था। They were absolutely sincere और वे संपूर्ण तौर पर ईमानदार थे and they were walking in the light. और वे ज्योति में चलते थे। But you know, as it always happens, over a period of time, there can creep in people who come with ulterior motives. पर जैसे कि अक्सर होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कई लोग अलग मंशा लेकर कई बार अंदर चले आते हैं। And some people take things for granted and they try to live a casual life, not कुछ take their life seriously. कुछ लोग चीजों को बड़े हल्के में लेते हैं, बड़ा सहजता का जीवन वे जीते हैं, वो चीजों को गंभीरता से ही, अपने जीवन को गंभीरता से ही नहीं लेते। And we read further in chapter 5 that there was a couple, Ananias and Sapphira, who were not sincere like these people initially. और आगे प्रेरितों उसके 5वें अध्याय में हम एक दाम्पत्य के बारे में पढ़ते हैं, हनन्या और सफीरा, जो इन लोगों के साथ इन लोगों की तरह ईमानदार नहीं थे। So I don't know at what time they came and joined this group, but अब they were not absolutely honest and sincere in their dealings in their private life. अब मैं नहीं जानता कि किस क्षण वे इन इस झुंड में आए थे और शामिल हुए थे, पर उनके जीवन में, उनके अंदरूनी जीवन में वे ईमानदार नहीं थे। So they pretended like, they're so, I mean, God was not interested in their money, first of all. और उन्होंने दिखावा किया। देखो, सबसे पहले तो परमेश्वर को उनके पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। And because everybody was selling their property and bringing it and keeping it at the feet of the disciples, the apostles, they also sold some of their property and kept part of it and then came and stood in the line as though they are giving 100% of the proceeds. और क्योंकि कई अन्य शिष्य अपने जमीन को बेचकर सारा पैसा लाकर शिष्यों के पैरों में रख रहे थे, इन्होंने भी अपनी जमीन बेची, पर उन्होंने उसका थोड़ा ही अंश यहाँ लाकर उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि मानो उन्होंने पूरा का पूरा पैसा वहां लाया है। And you read that in chapter 5 Acts. Peter, Peter tells Ananias, Ananias, why have you told a lie to the Holy Spirit? और आप प्रेरितों 5 में पढ़ते हो कि पतरस हनन्याह से पूछता है कि तूने पवित्र आत्मा से ये झूठ क्यों कहा है। Mind you, Ananias was standing in the queue. He didn't even open his mouth, but Peter told him, why have you told a lie to the Holy Spirit? अब इस बात को याद रखिए कि हनन्याह जो है वो उस कतार में खड़ा था और उसने अपना मुंह तक नहीं खोला था, उसके फिर भी पतरस उससे पूछता है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला। Peter was a discerning man. पतरस जो है वो परख रखने वाला एक व्यक्ति था। He knew what was in Ananias' heart. वो जानता था कि हनन्याह के हृदय में क्या है। He is acting there वो वहां दिखावा कर रहा है, as if he's giving 100%. मानो वो सब कुछ दे रहा है। Peter told him, when had sold the property, the money was yours. और पतरस उससे कहता है कि जब तूने अपनी भूमि बेच दी थी तो वो पूरा का पूरा पैसा तेरा ही था। If you wanted, you could have kept the whole thing. But why are you pretending like you're giving the whole thing by keeping some of it for yourself? You could have been honest and said, I sold for so much and I'm giving you 50% or 70% or whatever.
अगर तू चाहता तो पूरा का पूरा पैसा अपने लिए रख सकता था, पर फिर ये दिखावा क्यों किया कि पूरा जमीन बेचकर कुछ ही पैसा यहाँ देकर? अगर तू चाहता तो तू खुशी खुशी बता सकता था कि मैं 50% दे रहा हूँ या 70% दे रहा हूँ। Because of his hypocrisy, God had to smite him there dead. उसके पाखंड की वजह से परमेश्वर को वहां उसे मारना पड़ा। Little later, his wife comes. कुछ समय बाद उसकी पत्नी आती है। By then, Ananias' body had already been buried. तब तक हनन्या का जो शरीर है वो पहले ही गाड़ा जा चुका था। That tells me that his wife didn't know that his husband had died and been buried. और ये मुझे बताता है कि उसकी पत्नी जानती नहीं थी कि उसका पति मर चुका है और उसे गाड़ा गया है। And she comes and she also pretends like, she comes to know where his husband is. Long time he didn't come back. और वो आकर वो भी वैसा ही दिखावा करती है, और लंबे समय से उसका पति नहीं आया इसलिए वो शायद आती है। Peter asks her also, did you sell it for so much? पतरस उससे भी पूछता है कि क्या तूने इतने दाम के लिए वो बेचा क्या? She says yes. वो कहती है हाँ। And then he tells her, see the young fellows who buried your husband, they're just entering, they will take you also. और फिर वो कहता है कि देखो वो जवान लोग जिन्होंने तेरे पति को दफनाया वे आ रहे हैं, वे तुझे भी ले जाएंगे। She also falls dead. और वो भी वहीं मर जाती है। So breaking of bread is a serious thing. और इसलिए रोटी तोड़ना एक बड़ी गंभीर बात है। That's why we tell in our church here in Bangalore, when uh, anybody wants to break bread, we tell them if you have genuinely repented, born again, baptized, walking in the light, that means you are sincere, not hypocritical, not living a double life, then you're welcome to join us. और इसलिए यहाँ हमारे बैंगलोर के कलीसिया में हम बार बार कहते हैं कि अगर हम हमारे साथ रोटी तोड़ना चाहते हो तो क्या आपने वाकई में नया जन्म पाया है, बपतिस्मा लिया है, क्या आप ज्योति में चल रहे हो और वाकई मन फिराव में जी रहे हो, तब आप इसमें हिस्सा ले। Paul says in 1 Corinthians 11, I think, he says, let each man examine himself before breaking bread. और पहले कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में पौलुस कहता है कि रोटी तोड़ने से पहले हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचे। If we judge ourselves, we will not be judged. अगर हम अपने आप का न्याय करते हैं तो हमारा न्याय नहीं किया जाएगा। But if anyone takes part of the bread in an unworthy manner, और अगर रोटी तोड़ने में कोई अयोग्य रीति से उसमें हिस्सा ले तो he will bring judgment upon himself. वो अपने आप पर न्याय को लाएगा। And Paul says to the Corinthians, because of this reason, और पौलुस कुरिन्थियों से कहता है इस कारणवश some of you are weak, आप में से कुछ लोग निर्बल हो, some of you are sick, आप में से कुछ रोगी हो, and some of you are sleeping. और Means बहुत some से of सो you भी have गए हो। that means some of you have prematurely died. इसका मतलब कुछ लोग समय के पहले मर गए हैं। So just because you've been coming to church for a long time, that doesn't mean that you can take part in the breaking of bread. For that, you need to, first of all, be born again, repent of your sins, confess it to the Lord, and believe that He died in your place. Accept that and walk in the light, and then you can take meaningfully. और इसलिए केवल इसलिए नहीं आप रोटी तोड़ने में हिस्सा ले सकते कि आप कलीसिया में आते हो। अगर आपको वाकई आपका नया जन्म होना चाहिए, आपका बपतिस्मा होना चाहिए, आप अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल करते हो, वे शुद्ध हो रहे हैं, आप मन फिरा रहे हो, तभी आप मतलब के साथ उसके अर्थ को समझकर रोटी तोड़ने में हिस्सा ले सकते हो। And then we come to the fourth thing that these people did, फिर हम उस चौथे चीज के पास आते हैं जो इन लोगों ने की, that is prayers. वो है प्रार्थना। We read in Luke 18:1 where Jesus said, men ought to pray always. और हम लूका 18:1 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि लोग नित्य प्रार्थना करें। And we know that well known verse in Philippians 4:6, be और anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, let your requests be made known to God.
और फिलिपियो 4:6 में हम उस वचन को जानते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। And Jesus said, men ought to pray always and not lose heart. और यीशु ने कहा कि मनुष्यों ने हमेशा नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। How is it that we can pray always? अब ये कैसा संभव है कि हम नित्य या हमेशा प्रार्थना करें? To begin with, we all start with, say, morning quiet time or something like that. और शुरुआत में हमारे नए जन्म के बाद हम सब लोग आमतौर पर शुरू करते हैं कि सुबह कुछ समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, Maybe 5, 15 minutes or शायद half पाँच an पंद्रह hour. मिनट या आधा घंटा। We read scriptures and we meditate and we pray and then we close the Bible, get up, and then we go about our work. और हम बाइबल पढ़ते हैं, थोड़ा मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर बाइबल बंद करके हम जाकर अपना अपना काम करते हैं। Then come back in the evening after work or studies or whatever, and then we, before we go to bed, we pray and sleep. और शाम को हम जब घर लौट कर आते हैं तो सोने से पहले हम प्रार्थना करके सोते हैं। Jesus never meant that our prayer life should be like this. और यीशु की कभी ये चाहत नहीं थी कि हमारा प्रार्थना का जीवन इस तरीके का हो। When he said pray always means you don't necessarily have to kneel down and pray and close your eyes. We can't do that when we have so many other things to do during the day. जब यीशु कहता है कि नित्य या हमेशा प्रार्थना करो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम विशेष करके घुटने टेक कर आंखें बंद करके प्रार्थना करें, क्योंकि दिन में कई बार जब हमें अन्य काम होते हैं तो हम ये नहीं कर पाएंगे। So, what that means is that whenever you have, uh, you know, time when you're not occupied, your mind is not occupied on your work or things like that. Whenever you have free time, your thoughts can turn towards God, इस and in your heart you can pray. इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास थोड़ा खाली समय होता है, जब आप काम नहीं कर रहे, तो आपके मन में आपके विचार जो है वो परमेश्वर के पास मुड़ सकते हैं और आप प्रार्थना प्रार्थना कर सकते हो। Paul says in 1 Thessalonians 5 that pray without ceasing. और पौलुस पहले थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय में कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। How can we pray without ceasing? We अब have heard it in CFC from Brother Zach. हम निरंतर कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? हमने सीएफसी में भाई जैक के द्वारा इसके बारे में सुना है। What do we do without ceasing every day? और वो कौन सी चीज है जो हम बिना रुके प्रतिदिन हमेशा करते हैं? Even when we are awake or when we are unconscious, we do something that चा- that goes on and on continuously. और चाहे हम जगे हुए हो या हम सो रहे हो, कोई तो चीज है जो हम निरंतर करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। What is that? That वो is क्या है? nothing but breathing. वो है श्वास लेना, सांस लेना। Now, supposing you fathers, one of your children is going, say, to another place for higher studies, you will not exhort him or her and tell them that make sure that you breathe without ceasing. और आपके बच्चे जब मान लो ऊंचे पढ़ाई के लिए ज्यादा पढ़ने के लिए वो किसी और जगह जा रहे हैं, तो आप कभी उनको ये उपदेश नहीं दोगे कि देखो बेटा निरंतर सांस लेते रहना, इस बात को याद रखो। हम ऐसा नहीं कहेंगे, Because it is something very natural. क्योंकि ये ऐसा है कि बहुत स्वाभाविक तौर पर वो करेंगे। Whether we are awake or asleep, we keep breathing. चाहे हम जग रहे हो या सो रहे हो, हम तो सांस लेते ही रहते हैं। So when Jesus said, pray always, or when Paul said, pray without ceasing, the meaning is that whenever your mind is not occupied, or rather, let your spirit be in constant touch with your Heavenly Father. और जब यीशु कहता है निरंतर प्रार्थना करो और पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करो, तो मुख्य बात यह है कि जब आपका मन खाली है, आपके पास खाली समय है, और उससे भी बढ़कर कि की आत्मा निरंतर परमेश्वर के संबंध में है। That's why in Colossians 3, uh, Paul says
Set your mind on the things above, not on things of this earth. और इसलिए कुलुसियों 3 में पौलुस कहता है कि अपने मन को स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगाओ और इस पृथ्वी की चीजों पर नहीं। In one translation, it says, Let heaven fill your mind. एक और अनुवाद ऐसे कहता है कि अपने मन को, स्वर्ग को आपका मन भरने दो। Be in constant touch with the Lord. निरंतर प्रभु के संपर्क में रहो। We can do that in our spirit, in our mind. हम इसे अपने आत्मा में, अपने मन में कर सकते हैं। And Paul speaks about uh, certain kind of people in 1 Timothy 5:5. और पौलुस कुछ प्रकार के लोगों के बारे में पहला तीमुथियुस उसके 5वें अध्याय के 5वें वचन में बात करता है। He says here, that he's speaking about the widows. और यहाँ वो विधवाओं की बात कर रहा है। Now, she who is a widow indeed, and who has been left alone, has fixed her hope on God, and she continues in entreaties and prayers night and day. जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। It means a widowed sister who doesn't have anybody with her. She spends her time not visiting one another and gossiping about other people, but rather she spends time, like we read about Hannah when baby Jesus was brought to the temple. She was in the temple praying day and night. Like that, he says that such sisters should be praying with entreaties day and night. और यहाँ लिखा है कि जो वाकई में एक बहन जब वो विधवा है, उसका कोई नहीं है, तो वो अपना समय ऐसे नहीं बिताती कि लोगों के यहाँ जाकर उनको मिलकर और फिर काफी कुछ गपशप या चुगली करने में, बल्कि वो अपना समय बिताती है रात दिन विनती और प्रार्थना करने में। बिल्कुल जैसे हन्ना जब यीशु का जन्म हुआ था और उसे मंदिर ले गया था, कैसे वो भी अपने समय को, जो विधवा थी, निरंतर प्रार्थना करती थी। यहाँ भी लिखा है कि एक विधवा बहन भी रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहेगी, अपने समय, अपने आप को समर्पित करेगी। Same thing Paul also used to do. और यही बात पौलुस भी किया करता था। We read about that in 2 Timothy 1:3. हम इसको दूसरा तीमुथियुस 1:3 में पढ़ते हैं। He says, I thank God whom I serve with a clear conscience, the way my forefathers did, as I constantly remember you in my prayers night and day. जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। It's not only that he prayed for Timothy night and day, he continued praying for various people and various churches that they all might attain to the stature of the fullness of Christ. केवल ये नहीं कि उसने तीमुथियुस के लिए ही प्रार्थना की, पर अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कलीसियाओं के लिए वो प्रार्थना करता था कि वे मसीह के स्वरूप में संपूर्ण तौर पर बदल जाए। He says, I pray day and night, he says. और यहाँ लिखा है कि वह दिन रात तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। No wonder this man became the man that he became. और इसलिए कोई इसमें संदेह नहीं कि क्यों ये व्यक्ति वो व्यक्ति बना जो वो आखिर में बन गया। And God was pleased with this man, and God wants us also to follow in his footsteps. और परमेश्वर इस व्यक्ति से प्रसन्न हुआ और वो चाहता है कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चले। Yeah, the Lord bless these words. और परमेश्वर इन वचनों को आशीष दे। Amen. आमीन।